I welcome you all in online support program, AppSex online support program. Today we are going to start with the benzene continuity addition reactions of benzene, and today we are going to start with electrophilic substitution reactions of benzene. So electrophilic substitution reactions of benzene are due to the extra stability of benzene ring. Yesterday we have discussed about it, that benzene undergoes substitution reactions rather than addition reactions, and we have discussed it in details. So today we are just starting the electrophilic substitution reactions. What are these? So before starting it, first of all, the thing you must have to keep it in your mind that what are electrophiles. Actually, electrophiles are the species which are carrying positive charge. Fine. Those who have a positive charge, they are known as electrophile. And in electrophilic substitution reactions of benzene, what happens actually, the positive part from benzene ring, for example, we know very well that benzene formula is C6H6, so the positive part is all the hydrogens obviously will be carrying a positive charge, so we are going to remove one hydrogen first. One hydrogen is going to be replaced with any of the electrophile may be anything which is having a positive charge. So this is how substitution will occur. Fine. So this is electrophilic aromatic substitution reactions, and where E positive, as it is written here, E positive is an electrophile. Such reactions in which hydrogen atom or of aromatic ring is replaced by an electrophile are called electrophilic aromatic substitution reactions. This is the definition which you need to आपको पता होनी चाहिए कि what is the definition of electrophilic substitution reactions. Now we have a explanation and examples. Formation of strong electrophile, this is must for us, that electrophile ने अटैक करना है, वो स्पीशी अटैक करेगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू मेक अ इलेक्ट्रोफाइल. वो इलेक्ट्रोफाइल भी हम खुद ही बनाते हैं. तो होगा क्या, फॉर एग्जांपल दिस इज़ वी हैव हेलोजेंस एग्जांपल, X2 होता है, हेलोजेंस होते हैं, तो दे नॉर्मली डोंट कैरी पॉजिटिव चार्ज, बट इन प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड कैटलिस्ट होते हैं एक्चुअली. वो क्या करते हैं कि वो इनके बॉन्ड्स जो होते हैं, जैसे कोई भी हेलोजन है, इनके बॉन्ड तोड़ते हैं, और उनके बॉन्ड तोड़ने के बाद उनको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. कोई एक आपके पास हेलोजन होगा जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा. जो चीज़ पॉजिटिव चार्ज कैरी करने लग जाएगी उसको क्या नाम देंगे, फिर हम उसको नाम देंगे कि वो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया. अच्छा, क्लोरीन हैं कितने, फॉर एग्जांपल हेलोजेंस की बात करें, हैं कितने, 2. तो एक के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? दैट सेकेंड वन इज़ गोइंग टू बी अटैच विद दैट लुईस एसिड जिसके साथ इसने रिएक्ट करना है. फॉर एग्जांपल लुईस एसिड का फार्मूला होता है FeCl3. तो ये क्लोरीन उसके साथ जाके मिलके FeCl4 बना लेगा, और ये क्योंकि आयरन जो है उसने 3 बॉन्ड ही बनाने हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा क्लोरीन को जब अपने साथ रखेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रिटन हेयर FeX4. तो जब हम Cl अटैच करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, FeCl4 हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के साथ. सो दिस इज़ नॉट ए स्टेबल कंपाउंड. सो इट मीन्स के Fe एक एक्स्ट्रा क्लोरीन, नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन को अपने साथ अटैच करके बैठा हुआ है, और वो नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन जो एक्स्ट्रा Fe के साथ लगा हुआ है, आखिर में डीप्रोटोनेशन होती है बेंजीन से, तो वो उसके साथ जाके मिल जाता है. Cl उस प्रोटॉन के साथ जाके मिल जाएगा, जिस मतलब एक हाइड्रोजन को जो आप निकालोगे, वो एक हाइड्रोजन इस नेगेटिव पार्ट ऑफ द हेलोजन के साथ मिलेगा और पॉजिटिव पार्ट उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा. दिस इज़ हाउ दिस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर गोइंग टू हैपन. नाउ लेट्स सी स्टार्ट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल. एज आई सेड के इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज़ द FeX3, दिस इज़ लुईस एसिड कैटलिस्ट, एंड इट इज़ गोइंग टू बी रिएक्ट विद एनी ऑफ द हेलोजन, एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म दिस FeX4 negative and plus X positive. You can write any of the halogen, you can write bromine, you can write chlorine. So ये आपकी मर्ज़ी है. So हमने ये कर दिया. This is the first step. First step is the formation of strong electrophile. Now come through the second step. Second step is attack of electrophile on pi bond. This electrophile which we have made, it is of positive charge. It is going to attack on this pi system of benzene ring, and once this positive charge species is going to attack on this pi system, तो what will happen, because ये pi electrons तो already चाह रहे थे कि कोई इनके पास आए जिसके साथ ये बॉन्ड बनाए, तो ये बॉन्ड टूटेगा. दिस बॉन्ड इज़ गोइंग टू बी ब्रोकन हेयर, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, X यहाँ पर लग जाएगा, एक साइड पे आपने X लगा देना, और H क्या है यहाँ, H की क्या वो है कि यहाँ पे एक कार्बन जो है उसका H ऑलरेडी लगा हुआ था, जो यहाँ पर तो हम कहीं भी H शो नहीं करते, लेकिन जब हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ वाला हम H शो करेंगे. अब अगर आप देखते हैं तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ डिस्टर्ब हो गई है. कल हमने कुछ दिन पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने बात की थी कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज. फाइन. तो ये तो आपका
आपका ये वाला कार्बन जो है अब वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं रहा, बल्कि यहाँ वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। क्यों? कार्बन को यहाँ पर बॉन्ड कितने बना रहा है? कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड्स जो हैं वो बना रहा है। कौन कौन से? 1 2 3 4, ये वाला कार्बन, इस कार्बन की बात कर रही हूँ। तो ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इट इज़ डेफिनेटली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कार्बन, तो इस कार्बन का क्या है? इस कार्बन के पास एक्चुअली कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? तो इस कार्बन के पास टोटल 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, एक यहाँ पर, एक ऊपर, और एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है जो हम शो नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो है ना वो आपका हो गया है डिसबैलेंस, फाइन, क्योंकि इसका बॉन्ड था जो चौथी इसकी 4th वैलेंसी थी वो तो डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो रही थी ना, तो वो वाली वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही अब। तो यहाँ पर क्या हो गई है? यहाँ पर इस जगह पर कमी हो गई है। दैट्स वाई ये जो हम चार्ज शो कर रहे हैं, द पॉजिटिव चार्ज इज़ शोइंग दैट थिंग। अब क्या होगा? अब आपको पता है ये पाई सिस्टम कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। पाई सिस्टम आपका क्या होता है? कंटिन्यूसली ये बॉन्ड्स जो हैं ये मूव करते रहते हैं। तो अब क्या होगा? ये वाला पाई सिस्टम कहेगा डोंट यू वरी, आई एम हेयर, इट विल कम हेयर, फाइन। वंस इट विल कम हेयर, तो अब क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह ये काम चलता रहेगा। मैं आगे आपको प्रॉपर स्टेप के साथ बताती हूँ कि होगा क्या। चले मैं यहीं पे बता देती हूँ, आई डोंट नो आगे। हाँ, आगे चलें, आगे से देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से ही समझना स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ योर इलेक्ट्रोफाइल। यू कैन राइट हेयर इलेक्ट्रोफाइल इन फॉर्म ऑफ X पॉजिटिव, यू कैन राइट Br पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल बनाना मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ जिसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोफाइल्स को बनाना बताया गया है। ये आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, फाइन। अब आपने इलेक्ट्रोफाइल कोई भी यूज़ करना है, उस इलेक्ट्रोफाइल ने जाके आपके बेंजीन के पाई सिस्टम पे अटैक कर दिया, ठीक है जी। ये दिस पाई सिस्टम इज़ ब्रोकन। इफ़ दिस पाई सिस्टम इज़ ब्रोकन, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पास बॉन्ड टूटेंगे। अच्छा, बॉन्ड आपने तोड़ना है तो याद रखिए, एक साइड से जहाँ से आप बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो एक हाइड्रोजन वहाँ है, तो पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इस साइड पर शिफ्ट होगा, ठीक। क्यों शिफ्ट होगा? बिकॉज़ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया है। तो ये पाई सिस्टम तो कंटिन्यूसली रोटेट करता रहता है। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज आपका इस साइड पे शिफ्ट होगा। इस साइड पे जब ये आपका बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट होगा। जब बॉन्ड इस साइड पे शिफ्ट होगा तो ये कुछ इस तरह की शेप होगी आपके पास। बॉन्ड इधर गया और एक बॉन्ड इधर गया, और यहाँ आपका वो लगा हुआ है, कौन? इलेक्ट्रोफाइल और हाइड्रोजन को मैं ब्लैक साइन से शो कर रही हूँ। अब मुझे ये जो बताना है वो ये कि पॉजिटिव चार्ज अब मेरा यहाँ पर शो हो जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पर लगा हुआ था, क्यों शो हो जाएगा? क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो बैलेंस हो गया, बट अब ये वाला कार्बन डिससेटिस्फाई हो गया। अब क्या होगा जनाब? दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर, ऑब्वियसली, क्योंकि रोटेशन तो कंटिन्यूसली हो रही है ना। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मैं यहीं पर बना रही हूँ, ये यहाँ पर, और जो आपके पास यहाँ पर इधर आप क्या लगाओगे? अब मैं डिफरेंट चार्ज से लगा रही हूँ। पॉजिटिव चार्ज यहाँ शो हो जाएगा और बाकी आपके हाइड्रोजन और क्लोरीन इधर ही लगाओगे। ये जो मैं आपको बना के बता रही हूँ ना, ये आपने लिखना है इनको। दिस इज़ नोन एज एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स। ये शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड और ये जो आपकी वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज़ गेटिंग डिस्टर्ब, द वन कार्बन इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड द पॉजिटिव चार्ज इज़ रोटेटिंग, दीज ऑल थिंग्स आर मैंडेटरी फॉर यू टू एक्सप्लेन, फाइन। सो दिस इज़ हाउ 3 स्ट्रक्चर्स आपने ऐसे बनाने हैं जो मैंने आपको बना के बताए हैं। अब क्या होगा लास्ट पार्ट के अंदर? अच्छा, यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक लेके गए हुए हैं, बट आपने इसी तरह करना है जैसे मैंने बताया है। ये आपका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप के अंदर ये वाला काम हो रहा होता है जो यहाँ पर मैंने आपको बताना था, यहाँ तक, ठीक है। अब आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक शो हो गया, ये चीज़। अब क्या होगा लास्ट पार्ट में? ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होना है। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होना है इन फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, H पॉजिटिव। तो जब ये H पॉजिटिव यहाँ से निकलेगा तो दोबारा से यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जो यहाँ हम दिखा रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ सब्स्टिट्यूशन इज़ अकरिंग। यानी कि आपका जो बेंजीन का फार्मूला था वो C6H6 था, और यहाँ पर आपकी बेंजीन का फार्मूला हो गया, इसका फार्मूला हो गया C6H5X। तो यानी कि C6H6 नहीं, C6H5, मैंने C6H6 लिख दिया। दिस इज़ C6H6 एंड दिस इज़ C6H5X, सही। सो ये आपके पास आ रहा है, आपने इस तरह से इसकी सब्स्टिट्यूशन करनी है। और लास्ट पार्ट में आपने जो प्रोटॉन निकाला हुआ है, वो प्रोटॉन जो है एज आई सेड कि वो प्रोटॉन इस X के साथ जाके मिलेगा, जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ था। दिस प्रोटॉन इज़ गोइंग टू बी फॉर्म अ बॉन्ड विद दिस X, वन ऑफ द X, एंड इट विल फॉर्म HX
लुइस एसिड विल बी ये रिकवर हो जाएगा एज इट इज़, एंड दिस इज़ द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ योर्स. फाइन. सो अच्छा, नाम देख लीजिए, ये आपका बेंजीनोनियमाइन है और ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है. इसको हम एरिनियमाइन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और एरिनियमाइन भी कहते हैं. इसके 2-3 नाम हैं. और यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है, अगेन इट इज़ रिपीटेड. यहाँ सिर्फ डिफरेंस आपको मैं बता दूँ कि यहाँ ये लुइस बेस की टर्म यूज़ कर रहे हैं. लुइस बेस क्या है, लुइस बेस क्या काम करेगा? लुइस बेस वही चीज़ है जो मैं आपको बता रही थी कि आपका लुइस एसिड है जिसने एक हैलोजन को साथ रखा हुआ है. तो बेस क्या चीज़ है? जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो लेके बैठा हुआ है वो इस हाइड्रोजन को अपने साथ मिलाकर कोई ना कोई बॉन्ड बनाना चाहेगा. दिस इज़ द लास्ट पार्ट. ठीक है, लास्ट पार्ट के अंदर ये जो हमारे पास डीप्रोटोनेशन हो रही है, ये वो वाला स्टेप है. ओके, नाउ कम्स रिएक्शन टाइप विद द हैलोजेंस. डिफरेंट आपको मैं वो बता रही हूँ कि आपने किस किस तरह से क्या क्या हो सकता है. एज ए सेट के बेंजीन के ऊपर अगर Cl लग जाएगा तो वो क्लोरोबेंजीन होगा. दिस इज़ अ सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बेंजीन विद हैलोजन C6H5. दिस इज C6H5 एंड ऊपर आप क्या लगा देंगे? Cl. दिस इज़ क्लोरोबेंजीन. सिमिलरली इफ़ आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस क्लोरोबेंजीन विद एनी ऑफ द डिफरेंट, लेट मी चूज़ द रेड कलर. मैं यहाँ बना देती हूँ. नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है ये, यही होगा बेंजीन का स्ट्रक्चर है. और ऊपर आप क्या लगा दोगे? NO2. और यानी कि NO2 इज़ द इलेक्ट्रोफाइल हेयर. ठीक है, और आप वो इलेक्ट्रोफाइल बनाओगे कैसे? इन प्रेजेंस ऑफ ये कैटलिस्ट. ये 2 चीज़ें यूज़ करोगे जिससे आपके पास नाइट्रोनियमाइन बनेगा, NO2 बनेगा, और वो सारा का सारा काम जो है वो करेगा. यहाँ पर C6H6 के अंदर क्या, C6H6 का रिएक्शन विद, इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं. दिस इज़ फ्यूमिंग, FUMING. फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के केस में दिस इज़ योर इलेक्ट्रोफाइल जो कि आके अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ. यानी कि वो सारा एरिनियमाइन कॉम्प्लेक्स आपने इससे बनाना है और ये आखिर में आपके पास बाय प्रोडक्ट्स हैं. फिर आपके पास अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन. 3 स्टेप्स जो हैं वो होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट, जो लुइस एसिड की प्रेजेंस में होते हैं. वन इज़ दिस हैलोजिनेशन, सेकंड अल्काइलेशन एंड थर्ड वन एसाइलेशन. ये तीनों फ्रेडल उनकी प्रेजेंस में होंगे, लुइस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होंगे. इनको देख लीजिए. अल्काइलेशन के अंदर क्या होता है? बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई अल्काइल रेडिकल लगाना है. अल्काइल रेडिकल आई एम श्योर यू आर फेमिलियर विद एनी ऑफ द मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी. तो वो आप R लगाओगे तो R जो होगा इट विल बी एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल. और लास्ट में आपके पास ये एसीटोफिनोन है, एसिटाइल ग्रुप है. एसिटाइल ग्रुप के अंदर COR, ये इतना सा जो हिस्सा होता है ये अल्काइल रेडिकल होता है. और ये जो Cl होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड वो आपके पास HCl बनाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल जनरल रिएक्शंस हैं, एक एक नंबर के आते हैं. नाउ कम्स नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के जो मेन आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि नाइट्रोन ये किस तरह से होता है. दिस रिएक्शन इज़ गोइंग टू बी प्रोसीड. नाइट्रिक एसिड तो ऑब्वियसली चाहिए बिकॉज वी आर गोइंग टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन, बट इट विल अकर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. फाइन. व्हाट विल हैपन? दिस सल्फ्यूरिक एसिड, okay, जी, दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज़ गोइंग टू फॉर्म, दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोनियमाइन. फाइन. अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास, आप लोग देखिए कि ये जो आपके HNO3 है, HNO3 में दिस OH इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट प्रोटॉन विद इट सेल्फ. अच्छा, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है. जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो प्रोटॉन को कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है. ठीक है, और ये नाइट्रोजन तो आपका ऑलरेडी पॉजिटिव था. क्यों? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो था ना वो ये खींच रहा था, ये ऑक्सीजन. तो अब क्या होगा कि हमारे पास क्या बन गया है? यहाँ पर हमारे पास OH2, ये देखिए OH2 बन रहा है. 2 चीज़ें पॉजिटिव हैं. तो व्हाट इज़ आर इलेक्ट्रोफाइल हेयर? व्हाट इज़ दिस इज़ अ नाइट्रोबेंजीन बनाना है. तो दिस इज़, वी आर नॉट, OH2 वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट नहीं करेगा, वो अलग से आपने उसको वाटर की फॉर्म में शो करना है. और सल्फ्यूरिक एसिड को देख लें तो सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास इस फॉर्म में आपको नज़र आएगा. ये जो आपके पास H यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़ है. ठीक है, ये इस फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है HSO4. खैर इससे हमारा अभी कंसर्न नहीं है, बट ये एक साइड में आपने इसको शो करना है. दिस इज़ योर नाइट्रोनियमाइन विच इज़ योर इलेक्ट्रोफाइल. नाउ दिस नाइट्रोनियमाइन इज़ गोइंग टू अटैक ऑन द बेंजीन रिंग एंड इट इज़ शोन हेयर. पाई सिस्टम पे अटैक किया है इसने, इस नाइट्रोनियमाइन ने पाई सिस्टम पे अटैक किया है. ये हुआ, बॉन्ड यहाँ पर टूटा, यहाँ पर ये आके दोनों अटैच हो गया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन. ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. फिर जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो ये शिफ्ट होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ये सारा आपने करके दिखाना है. अच्छा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ लेकिन आपने 1 बाय 1 करना है. ठीक है, पहले आपने इसको शो करना है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज शो करना है. इसको चले मैं आपको एक प्रॉपर तरीके से करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो.
एक तो ये हो गया, इसको आपने ऐसे लिखना है। एक तो आपने सबसे पहले ये वाला स्टेप लिख देना है, दिस इज़ योर फर्स्ट, ठीक। उसके बाद क्या है, सेकंड को मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। आपने इस तरह से एरो बनाना है और एरो बनाने के बाद आपने इसको ऐसे शो करना है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, और ये बॉन्ड यहीं रहेगा, और यहाँ बॉन्ड आप शिफ्ट कर चुके हैं, और ये दोनों चीज़ें आपने ऐसे ही लगा देनी है, NO2 और H। फिर क्या है, फिर आपके पास थर्ड, अब आपने क्या करना है, आपने इस बॉन्ड को शिफ्ट करके दिखाना है इस साइड पे। अच्छा, शिफ्टिंग भी दिखानी है कि बॉन्ड अब पाई सिस्टम रोटेट कर रहा है। जब आप रोटेट करोगे तो आपके पास ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ ये दोनों चीज़ें लग जाएंगी। ये है एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स। इसको आपने इसी तरह से शो करके दिखाना है, डोंट फॉरगेट। और फिर क्या है, फिर आपके पास लास्ट में डी प्रोटोनेशन होगी, और डी प्रोटोनेशन, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डी प्रोटोनेशन, दिस HSO4 नेगेटिव जो हम लोगों ने साइड पे रखा हुआ था। इट इज़ गोइंग टू टेक वन ऑफ द हाइड्रोजन, पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वॉट, जो बेंजीन निकालेगा, डी प्रोटोनेशन करेगा, वो अपने साथ मिला लेगा। क्योंकि कैटलिस्ट यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इट इज़ गोइंग टू बी इन द फॉर्म ऑफ H2SO4 प्लस नाइट्रोबेंजीन विल बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। एज आई सेड, सल्फोनेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वॉट, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। पीछे मैंने आपको बताया था इट इज़ SO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अगेन आपने करना क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस पे SO3H जो है आपका, ये अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ। प्रोसीजर सेम है, सब सेम है, बस इलेक्ट्रोफाइल के अंदर डिफरेंस होगा। यहाँ SO3H बनाना है आपने, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे आप, और साथ में आपने, ये आपका एक जनरल रिएक्शन है जो आपने एक नंबर का आएगा तो आपने शो करना है। और अगर मैकेनिज़्म के साथ आता है तो जस्ट लुक एट इट हेयर, दिस इज़ SO3, ठीक। दिस SO3 विल अटैक ऑन दिस पाई सिस्टम एंड लुक एट दिस, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा था तो हमने इसको इस तरह से शो कर देना है। बॉन्ड टूटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये दोनों यहाँ ही लगे रहेंगे। शिफ्टिंग होगी जो हम लोगों ने पहले किया है, शिफ्टिंग तब तक होती रहेगी जब तक ये प्रोटॉन हम रिमूव नहीं कर देते। और जब ये प्रोटॉन लास्ट पार्ट में रिमूव होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड अगेन H2SO4 बना लेगा, उसको अपने साथ लगा लेगा, और इसके साथ आपके पास SO3 लगा रह जाएगा। अच्छा, दिस इज़ नॉट कम्प्लीट येट, अभी ये इनकम्प्लीट है, SO3 का पार्ट लगा है। अब इसने क्या करना है, ये ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ पर आपके पास क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भी मौजूद है, और वाटर आपके पास किस फॉर्म में, हाइड्रोनियम, वाटर ने भी कहीं आपके पास हाइड्रोनियम आयन बनाया हुआ है, तो वहाँ से एक H पॉजिटिव जो है आपके पास, वो ये अटैच कर लेगा अपने साथ, वो H पॉजिटिव प्रोटॉन, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसके पास एक ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, तो ये इस तरह से SO3H और प्लस वाटर आपके पास बाय प्रोडक्ट में बन जाएगा, ठीक है। सो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन शो हो रहा है। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन सेम वही प्रोसीजर है, मैं फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आपके पास क्लोरीनेशन है, FeCl3 की प्रेजेंस में है, बॉन्ड टूटा, FeCl4 बना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बना, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, सारा आपका एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, इंटरमीडिएट जो भी आपने बताना है, ये सारा आपने कॉम्प्लेक्स बनाना है। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड के साथ शेप मैटर नहीं करती, किस तरह से भी बनाएं आप बेंजीन की, बस बॉन्डिंग जो है ना वो शो सही कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखें, ये पॉजिटिव था, इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, फिर ये इधर गया तो यहाँ देखें, यहाँ पॉजिटिव लग रहा है, ये आपके पास सही है। और लास्ट में आपके क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, तो उसकी जगह Cl ने प्रॉपर तरीके से ले लेनी है, HCl और FeCl3। और यहाँ हेलोजनेशन का एक जनरल रिएक्शन ये लिखा हुआ है, अगर एक नंबर के लिए आएगा तो दिस इज़ हाउ क्लोरोबेंजीन आप लोग बना के दिखाएंगे। लास्ट में हेलोजनेशन ऑफ टॉलिन है। अच्छा, हेलोजनेशन ऑफ टॉलिन के अंदर क्या है कि सिंपल साइड चेन सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि ये जो है आपका अल्काइल रेडिकल या जो भी बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लगी होती है वो अपनी वो कर रही होती है, फर्दर ऑन सब्स्टिट्यूशन कर रही होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ से मज़ीद एक H निकला है, H की जगह कौन ले ली, किसने ले ली, यानी ये CH3 था, CH3 में से एक H माइनस करोगे तो पीछे क्या बचेगा, CH2, तो वो एक H निकला, वो Cl के साथ और Cl, बस सिंपल एक रिप्लेसमेंट हुई है, सही है। तो इसको कहते हैं क्लोरोमिथाइल बेंजीन। फर्दर ऑन यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये काम चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक CCl3 नहीं बन जाता, तो ये अल्काइल्स की प्रेजेंस में ये काम होगा। आपने बस करना क्या है, एक Cl निकालना है, एक H लगाना है, Cl निकालना है, H लगाना है। ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन्स हमारे ख़त्म नहीं हो जाते। उसके बाद क्या है, फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन।
फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होती है? अल्काइल ग्रुप, एज हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, अल्काइल रेडिकल कोई ना कोई अटैच होगा, आपने को अल्काइल हैलाइड लेना है। अल्काइल हैलाइड क्या होता है? मिथाइल कोई भी लगा होगा हेलोजन के साथ, CH3 आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, हेलोजन आपका नेगेटिवली चार्ज है, और हेलोजन आपका नेगेटिवली चार्ज है तो वो क्या करेगा? वो प्रोटॉन को लेके साइड पे होगा, ठीक है, वो फाइनल लास्ट में। बट हेयर अल्काइल इज़ द इलेक्ट्रोफाइल हेयर, सो अल्काइल ने आके अटैक करना है ऑन द बेंजीन पाई सिस्टम। ये आपके सामने रिएक्शन है, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट अटैकिंग। अच्छा, इधर डायरेक्ट रिएक्शन लिखा हुआ है, नीचे देख लें, ये सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, सबके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको इतना बता देती हूँ, ये अल्काइल है, यहाँ आपका ये अल्काइल है, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा चार्जेस के अंदर गड़बड़ है, ये पूरा अल्काइल है, सिर्फ CH3 अल्काइल नहीं है, और यहाँ ये पूरा अल्काइल है, ठीक है। तो ये अगर आप देखते हैं तो ये पूरे के पूरे उसके ऊपर लगेंगे, कुछ भी नहीं है, बस आपने अल्काइल ये याद रखना है कि आपने बेंजीन के ऊपर अटैच क्या करना है, और अटैकिंग किस चीज़ की हो रही है? पॉजिटिवली चार्ज चीज़ बेंजीन के ऊपर, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो जाके हाइड्रोजन को अपने साथ लगा लेगा। लास्ट पार्ट में ये दैट वाज फीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और ये अल्काइलेशन का एक कह लें कि उसी का मैकेनिज़्म दिखा रहे हैं कि ये AlCl3 है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, ये R है, कोई भी R यूज़ कीजिए, ये AlCl4 बना लेगा, वही नेगेटिव चार्ज AlCl4। अच्छा, लुइस एसिड आपके पास AlCl4, AlCl3, FeCl3, जिसके अंदर जो भी मैचिंग करता हुआ आपके पास हेलोजन आ रहा होगा वो चीज़ होगी, और ये R ने पूरा का पूरा एरिनियम आयन कॉम्प्लेक्स इस तरह से बनाना है, पॉजिटिव चार्ज आपका शिफ्ट करा के आपने दिखाना है, और लास्ट में आपने प्रोटॉन को यहाँ से रिमूव करके HCl के साथ, और लुइस एसिड आपने जो आपका AlCl3 था उसको आपने ओरिजिनल फॉर्म में रिकवर कर देना है। लास्ट पार्ट है फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर भी सेम, बस ये याद रखना है कि तोड़ना बॉन्ड कौन सा है, बॉन्ड आपने ये तोड़ना है, दिस Cl इज़ नेगेटिव, बाकी ये सारा पॉजिटिव है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके इधर अटैच होगा, जब ये अटैच होगा तो ये कुछ ये चीज़ बन जाएगी आपके पास, दिस इज़ नोन एज एसाइल बेंजीन, और साथ में HCl है, ठीक है, वही H आपका ये वाला H है, और इसने जाके इस Cl के साथ मिल जाना है, HCl बनाना है। दिस रिएक्शन ऑल्सो प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड AlCl3, और दिस इज़ हाउ इसको, ये जो आपके सामने प्रोडक्ट बन रही है, प्रोडक्ट आपके पास ये है, बेंजीन के ऊपर COCH3, इसको एसीटोफिनोन कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एसीटोफिनोन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर आपने बना के दिखाना होता है, और आगे इसका मैकेनिज़्म गिवन है। थोड़ा सा मैं आपको ये दोबारा समझा देती हूँ कि आपने क्या करना है, AlCl3 ने आना है, AlCl3 ने Cl को अपने साथ अटैच करना है, AlCl4 नेगेटिव बना लेगा, ये आपका एसाइल रेडिकल है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, इस एसाइल रेडिकल ने बेंजीन के पाई सिस्टम पे अटैक करना है, वही पॉजिटिव चार्ज आपका शिफ्टिंग आपने दिखानी है, और लास्ट पार्ट में आपने प्रोटॉन को प्रोटोनेशन दिखा के जो कि HCl के साथ मिलेगा, एसाइल ग्रुप को आपने बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच करके दिखा देना है, दिस इज़ नोन एज एसाइलेशन, और दिस द प्रोडक्ट नेम इज़ एसीटोफिनोन। हेयर इज़ अ असाइनमेंट, यू नीड टू राइट अ मैकेनिज्म फॉर द ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन, एंड plus what is sulfonation, give mechanism for sulfonation in benzene, and these are the structures draw करने हैं आपने, ठीक है। तो that's all about today। अल्लाह।